हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी एक ना एक ख्वाहिश होती है ना, तो मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि मुझे भी ताजमहल देखना था। सो फाइनली हम ताजमहल पहुंच गए। आगरा फोर्ट से कुछ ही दूर में ना ताजमहल है। सो हमने पार्किंग एरिया से सारे जो इंतज़ाम है ना ताजमहल तक जाने के, वो सारे हमारे ट्रैवलर्स ने ही की थी। सो वहाँ पर हमें एक टुक टुक से ले जाया जाता है ताजमहल तक। उनके सारे जो फ़ीस वगैरह है वो सारे हमारे ट्रैवलर्स ही पे करते हैं। वहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी, बहुत टाइट। सिर्फ मोबाइल वहाँ पर अंदर ले जा सकते हैं, बाकी कुछ भी खाने की चीज़ वगैरह कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, और बहुत चलना भी है। सो यहाँ पर ताजमहल किस साल में किस तरह का उनका गार्डन बना, वो सारा यहाँ पर उन्होंने वॉल पर ना, जब एंट्री है वहीं पर उन्होंने लगाया था। सुबह से जो भी हमारे साथ थे सभी लोग ताजमहल के लिए वेट कर रहे थे। हम जिस वक्त आए थे ना, वो कुछ ऑड टाइम था, दोपहर का वक्त था। बहुत कड़ी धूप थी वहाँ पर फिर भी बहुत खुश हुए। फाइनली ज़िंदगी में पहली बार सभी लोग ताजमहल देख रहे थे। जिस दिन हमने आगरा फोर्ट देख लिया था ना, उसी दिन हम ताजमहल भी आए थे। सो यहाँ पर भी हमें एंट्री फ़ी फ्री थी, क्योंकि हम 18 अप्रैल को गए थे। उस दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे है। ताजमहल एंट्री करने के लिए 4 गेट होते हैं। यहाँ पर चलने के लिए ना किसी को भी थकावट नहीं होती थी, क्योंकि सभी बहुत एक्साइटेड थे। और चारों तरफ 4 गेट होते हैं। जिस गेट से हम गए थे ना, वो साउथ गेट थी। Because here 4 gates. This is the eastern gate, this is the south gate, and this is the western gate, this is the north gate. Okay. First of all, I will tell you how we have to go. We will enter from this big gate for entry. As we enter inside, we will turn left. Immediately turn left. That is the photo point. Take the photos. After that, from left side road you have to go. Left side corner of Taj Mahal. When you face Taj Mahal, left side corner is the entry. From there you have to enter. So when you go close to the white marble area, put the cover over the shoe. On the white marble, shoe step is not allowed. So put the cover over the shoe. See Taj Mahal. Going in is big gate, but coming out small gate. The small gate for coming out. I will meet you inside. Inside the small gate. So meeting point here. So sharp time 3:35. 3:35. Everybody meeting me here. Okay. Don't come outside. Inside I will meet you inside near the gate. So here the Taj Mahal. Taj Mahal built by the 5th Mughal ruler Shah Jahan in the memory of his beloved wife Arjumand Banu Begum, very commonly known as Mumtaz. Mumtaz is the title given by Shah Jahan to Arjumand Banu Begum. So Mumtaz means chosen one and Mahal means palace. So because Shah Jahan having 3 wives. First wife Fatehpuri Begum. Fatehpuri Begum, no children, grave outside. So second wife Sarhandi Begum. Sarhandi Begum also no children, grave outside. Third wife Mumtaz. Mumtaz and Shah Jahan 14 children. So 8 children died at the time of birth. 6 children only survived. 2 daughters you have seen inside Agra Fort, Roshanara, Jahara Palace. 2 daughters and 4 sons. 4 sons, Dara Shikoh, Shuja Shah, Nasiruddin Aurangzeb and Murad Shah. 4 sons. So 6 children only survived. Actually Mumtaz's birthplace is Turkey. She was daughter of Asaf Khan. Asaf Khan brother of Noor Jahan. And Shah Jahan birthplace Lahore. So both marriage 16, 12, 16 time, both age 20 years. Shah Jahan also 20 years, Mumtaz also 20 years. So Shah Jahan, Mumtaz 18 years, 14 children. In 18 years, 14 children. 8 children died at the time of birth, 6 children survived. 14th delivery time, Mumtaz not feeling well. So Shah Jahan gave 3 promises. First promise, he will not marry again. Second promise, take good care of children. Third promise, I will make a total. So Mumtaz died
at Burhanpur, MP border. She died there, and after that Shah Jahan built the Taj Mahal. So from 1631 to 1653. So 1631 to 1653 took about 22 years. 11 domes upstairs and 11 domes that side on the north gate. So one dome representing 1 year. So 22 years, 1631 to 1653. So Taj Mahal, daily 20,000 workers employed here. 20,000 workers daily employed here. Back side of the south gate, laborers colony, employees colony over there. So back side of south gate. So ये ताजमहल की मेन एंट्री गेट है। इसे फतेहपुर बेगम गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि शाहजहां की और एक वाइफ थी फतेहपुर बेगम। हमेशा मुग़ल गार्डन में 4 कॉर्नर्स होते हैं और यहाँ पर भी आपको 4 बगीचे दिखेंगे। इस गेट को ना दरवाज़े रोज़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गार्डन है अंदर उसके तरफ की एंट्री गेट है। एंड फाइनली इस गेट को एंटर करते ही सबके मोबाइल भी ऑन हो गए और मेरा भी ऑन ही हुआ था, जो कि पहली झलक ताजमहल की जो है वो मैं कैप्चर करना चाहती थी, देखना चाहती थी। एंड फाइनली हमने ताजमहल देख लिया, दूर से ही सही। ये पहला साइट है जो कि गेट से अंदर आता है। अंदर आते ही हमें दिखने के लिए मिलता है ताजमहल। कुछ इस तरह से दिखता है ना खूबसूरत। ये पॉइंट है, गार्डन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। मोबाइल पे वीडियो कॉल करके हमने मेरे बेटे को भी ताजमहल दिखा दिया। ताजमहल के लिए ना आप सीधा इस गार्डन के साइड से भी जा सकते हैं और उसके बगल में भी एक एरिया है, उस तरफ से भी आप जा सकते हैं। ताजमहल के बारे में मैं ज़्यादा इस वीडियो में बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी, क्योंकि सभी जानते हैं ताजमहल मुमताज़ बेगम के याद में शाहजहां ने बनाया था। ये मैंने सुना है कि मुग़ल गार्डन्स जो होते हैं कुछ अलग ही तरह से होता है, पर जो ताजमहल का गार्डन एरिया है ना वो कुछ अलग तरह से ही बनाया गया है, जो कि बाकी मुग़ल गार्डन होते हैं कुछ उस तरह का ये गार्डन नहीं है। वो लोग से मेरे हस्बैंड ने किया, तो एयरपोर्ट पहुँचे तो उधर से घर लगते हैं। एल्बम रखते हैं लोग। जो भी अभी आपने देखा ना, मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों ही मुझे टीज़ कर रहे थे। जिस तरह मैं वीडियो पे बात करती हूँ ना यूट्यूब पर वीडियो डालते वक्त, उसी तरह ना वो भी बात करके ना मुझे टीज़ कर रहे थे। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स मिलते हैं, आप जिस तरह चाहे उस तरह की तस्वीरें ले सकती हैं। दिन के उजाले में ताजमहल सफ़ेद वाइट दिखता है, शाम के वक्त सूरज डूबने के वक्त ऑरेंज दिखता है और मूनलाइट के दिन वो ब्लू दिखता है। दूर से देखते वक्त बहुत ही छोटा सा लग रहा था ताजमहल, पर पास आते ही करीब आते ही बहुत बड़ा लग रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था, जो कि मैं तो बहुत खुश थी। वर्ल्ड का एक वंडर है वो। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर तो उस एरिया से पास होते वक्त हमें
सैंडल्स के ऊपर या हमारे शूज़ के ऊपर एक कवर देते हैं, उसे डालकर ही हमें ऊपर जाना पड़ता है। जितना छोटा है दूर से दिखता है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तब बहुत ही बड़ा दिखता है और उसका जो ऊपर का डूम भी हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। बहुत ही प्यारा मोमेंट था और कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम ताजमहल देखेंगे, क्योंकि हम तो साउथ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ की तरफ कोई जाता नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं। तो मुझे बहुत इच्छा थी एक न एक दिन मैं ताजमहल ज़रूर देख लूँ। बाकी कहीं जाऊँ या ना जाऊँ पर मुझे ताजमहल देखना था। सो फाइनली हम आ ही गए एंड थैंक्स टू पनिकर्स बहुत ही रिजनेबल रेट से हमारा टूर भी बना और हमें बहुत सारी ऐसी जगह भी दिखने के लिए मिली। सो मैं उनको तो ज़रूर शाउट आउट ज़रूर दूंगी। और ये जो स्टेप्स हैं ना ऊपर की तरफ जाने के स्टेप, अंदर की तरफ मार्बल से ही बनाया गया होगा, पर यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो वुडन प्लैंक्स है और स्लिप ना हो जाए शायद इसलिए यहाँ पर बनाया गए होंगे। एंड फाइनली हम ताजमहल पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और इतना बड़ा है मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर आपको चारों तरफ 4 मीनार दिखेंगे और ये हम अंदर आ गए थे। एक्चुअली अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, पर लकीली यहाँ पर हमें वीडियो निकालने की परमिशन मिली। पता नहीं कैसे बहुत सारे लोग ले रहे थे तो मैंने भी कुछ कैप्चर किया। मुमताज़ और शाहजहां के कब्र यहाँ पर आपको दिखेगी, वो भी हमने देखी और मैं यहाँ पर आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। बहुत ही कूल है, अंदर बता नहीं सकती हूँ उतना सुंदर है। और यहाँ पर जो रेड ब्लैक ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ना, एक्चुअली वाइट मकराना मार्बल से ताजमहल बनाया गया है, पर जो आपको रेड कलर के दिखते हैं ना वो अलग अलग स्टेट से वहाँ से कुछ पत्थर वगैरह लेकर मार्बल पर कार्विंग की है। जब पूनम की रात को ना चांदनी की लाइट जब इस पर गिरती है तो वो रेड कलर का दिखता है। वो नज़ारा देखने के लिए ना बहुत सारे लोग भी इकट्ठा होते हैं। इस तरफ यमुना नदी और उस तरफ ताजमहल। यमुना नदी के उस तरफ कहा जाता है कि ब्लैक ताजमहल भी बनाने वाले थे, पर जो कि उस टाइम के जो एक्सपेंडिचर भी बहुत लगते हैं ना, तो इसीलिए शायद वो प्लान ड्रॉप किया गया था। मैं ज़्यादा बिल्कुल ही मैंने यहाँ पर कैप्चर नहीं किया, बस मुझे देखना था, वहाँ पर कुछ वक्त बिताना था, टाइम स्पेंड करना था। तो हम बहुत बैठ गए। अंदर ना बहुत ही कूल है, जैसे कि हज़ारों एसी चलाते हैं ना उस तरह की ठंड उसके अंदर थी और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़िंदगी में एक बार तो ताजमहल देखना बनता ही है। हम टच करके भी आए थे ताजमहल को। सो यहाँ पर कुछ ही मैंने क्लिपिंग्स यहाँ पर ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं ली। सो कुछ वक्त हमारे लिए भी, हम गए थे ना तो हमारे लिए भी हम वक्त बिताना चाहते थे। सभी लोग बैठकर एंजॉय कर रहे तो हम भी कर रहे थे। सो जो भी मैंने यहाँ पर कैप्चर किया वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगी और ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में, बस मैं उसे अपनी आंखों से एक बार देखना चाहती थी। मैंने देख लिया। अगर आपको भी मौका मिले तो ज़िंदगी में ज़रूर देखना।
बाय बाय ताजमहल, बाय बाय। बाय बाय ताजमहल। होप कि आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू पनिकर्स वंस अगेन, क्योंकि हमारा एक ड्रीम जो है वो कंप्लीट हुआ था और हम बहुत ही खुश थे। और जो कि हमारा गोल्डन ट्रायंगल पैकेज थी, उसमें जयपुर, आगरा, फतेहपुर सिकरी और मथुरा भी था। सो यहाँ से हम मथुरा निकल गए। मथुरा में बिल्कुल ही वीडियो अलाउड नहीं था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मस्जिद और टेंपल के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे, तो हाई सिक्योरिटी वहाँ पर थी। बिल्कुल ही बस में ही हमें मोबाइल रख के जाना था। सो यहीं पर हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल पैकेज थी वो यहीं पर ख़त्म होती है 2 दिन की। सो ताजमहल तक ही मैं वीडियो कैप्चर कर पाई और यहाँ से आगे मैं बिल्कुल ही नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं था। आगरा का पेठे भी हम लेकर आए थे, बहुत ही अच्छे थे। एंड फाइनली ये जो ताजमहल का नज़ारा है ना, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। बहुत ही सुंदर सी वो जगह थी। और आप सभी को अगर कभी भी मौका मिले ज़िंदगी में तो वहाँ का विज़िट ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कीप ऑन सपोर्टिंग। जो भी देखते हैं उनके लिए भी, सभी लोगों के लिए थैंक यू। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।